السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين. آج ہمارا حیا کی روشنی سیریز کا ڈے 6 ہے. اس سے پہلے ہم نے اپنے 5 ڈیز میں ڈے 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ حیا کیا ہے، حیا کا لغوی اور شرعی مفہوم دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ڈے میں اپنے جب نظر بہترائی یعنی نظر کا گناہ اور سوشل میڈیا پر نظر کا احتیاط دیکھا تھا. تھرڈ ڈے میں ہم نے لباس کا دیکھا تھا کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. اور فورتھ ڈے میں ہم نے سیلف ریسپیکٹ از ریئل حیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھی تھی، اپنی باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں. اور جو ہے پھر کل والے ڈے میں ہم نے دیکھا مزہ بھی حیادار ہو سکتا ہے، یعنی اپنے بات چیت میں وقار کیسے لائیں. اور آج ڈے 6 ہے تو آج ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا اور حیا. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اب مزید اس میں دیکھیں گے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنی حیا کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. ہم کوئی بھی اپنی پوسٹ وغیرہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، کچھ بھی اپنی تصاویر ہو گئی کچھ بھی، تو جو ہے وہ کس انداز میں، یعنی اس کے اندر ہمارا کیا انکریمنٹ کیا رول ہوتا ہے ہمارا، اور کیوں پوسٹ کرتے ہیں. ریل اور ریئل کا فرق دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ صرف ایک جو ہے وہ صرف جنگ نہیں ہے، ایک یہ نہیں ہے صرف ایک دو دن کا کام ہے. یہ نفس کے ساتھ ایسی جنگ ہے جو تا حیات جاری رہتی ہے. ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں، نارمل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہیں سے جو ہوتا ہے نا، ہماری جو ہے ان چیزوں کا دروازے کھلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں برائیوں کے. تو آج دیکھیں گے فلٹرز میں مٹی حقیقت. حیا کہاں گئی؟ جب نگاہیں دل سے جڑ جائیں، دل اللہ سے ہٹ جاتا ہے. آج کی دنیا میں حیا کا سب سے بڑا دشمن سوشل میڈیا بن چکا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پردہ موجود ہوتا ہے، مگر صرف جسم پر، نیتوں پر نہیں. تصاویر پوسٹ ہوتی ہیں مگر مقصد صرف اظہار نہیں، دکھاوا بھی ہوتا ہے. فلٹرز لگتے ہیں تاکہ حقیقت چھپ جائے اور فالوورز بڑھ جائے. یہاں پہ دیکھیں تصاویر پوسٹ ہوتی ہیں، پردہ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے. جسم ہم پردے میں بھی جو ہے اگر تصاویر پوسٹ اکثر لڑکیوں کی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لائکس ہوں، ہمارے فالوورز بڑھ جائیں. چاہے پردہ بھی ہو، لیکن نیت جو ہے، نیت کا بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری نیت کس حساب سے ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے نا کسی اور کو نہیں پتہ لگے، لیکن ہمارا اور ہمارے رب کا جو تعلق ہے نا، اس میں نیت جو آتی ہے نا وہ سب سے اہم ہے. اور نیت کسی کو نہیں پتہ چلتی، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے وہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں. جب تصویر لگاتے ہیں تو وہ ایک اظہار یا امتحان ہے. ہماری ہر پوسٹ، ہر تصویر ایک سوال پوچھتی ہے، میں یہ کیوں پوسٹ کر رہی ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے؟ کیا میں چاہتی ہوں لوگ میرے چہرے کو یاد رکھیں یا کردار کو؟ کیا میری پوسٹ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا نفس کی غلام بنا رہی ہے؟ یہ کوشچن جو ہے نا، ہر تصویر، وہ چاہے اپنی تصویر ہو، یہ بات جو ہے اپنی تصویر کے بارے میں کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پہ ہم پوسٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے لوگ کس چیز کو یاد رکھیں، ہمارے چہروں کو یاد رکھیں، یہ کہیں کہ یہ بہت پردے والی بہت اچھی لڑکی ہے، یا پھر یہ یاد رکھیں کہ اس کا کردار اچھا تھا. ہمیں ہماری پوسٹ کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ جو ہم خود کے قریب، اللہ کے قریب لوگوں کو کر رہے ہیں، یا پھر اپنے نفس کے غلام بن رہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی اپنے غلام بنا رہے ہیں نا.
जब नियत दिखावा हो तो इबादत भी गुनाह बन जाती है, तो फिर सेल्फी कैसे नेकी हो सकती है? देखिए ना, जब इबादत जब नियत में दिखावा आ जाए तो फिर कोई भी काम है हमेशा अच्छी नियत से, आप नियत अगर बुरी होगी ना तो फिर जो भी काम आपने किया जाहिर तो इबादत लग रहा है, तो लेकिन क्या होगा, उसमें भी गुनाह मिलेगा आपको। तो नियत अच्छी रखनी है। रील्स और रियल लाइफ का फर्क देखना है। रील्स में जो सोशल मीडिया पर जो लड़की हंसती है, मुमकिन है वो दिल से टूटी हुई हो। जो बोल्ड बनकर बात करती है, मुमकिन है वो तन्हाई में रो रही हो। लेकिन हम इसी दिखावे को असल समझकर अपनी हया कुर्बान कर देते हैं। हम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं ना, जैसे देख लिया हमने कि वो लड़की देखो इतनी मॉडर्न है और इतनी खुश भी है, सारा कुछ है, लेकिन हकीकत में ये हो सकता है कि वो दूसरों को दिखाने के लिए वो ऐसी बन के आ रही हो सोशल मीडिया पर ऐसी, लेकिन हकीकत में वो टूटी हुई हो, रोती हो तन्हाइयों में इसी वजह से। लेकिन जब वो उसने अपनी रील्स अपलोड करी, उसमें उसमें मस्कुरी मुस्कुराहट और वो सारा कुछ लेकर आती हो, हम नहीं जानते ना। हम इसी दिखावे को समझ कर अपनी हया कुर्बान कर देते हैं। हम लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपनी पाकीज़ा जिंदगी गिरवी रख देते हैं। सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि लोग कैसे नजर आना चाहते हैं, ना कि वो कि हकीकत में क्या है। लोग जैसे दिखना चाहते हैं ना, अपने आप को वैसा दिखाते हैं, लेकिन जैसे हकीकत है ना वो इससे कहीं दूर होती है। वो हकीकत में जैसे है ना वैसे नहीं हमें नजर आते। लाइक्स का जादू और नफ्स की गुलाम। एक लड़की अपनी तस्वीर अपलोड करती है, अगर 100 लाइक्स आते हैं तब दिल खुश होता है। खुश होता है भाई, अच्छा इसका मतलब है मैं प्यारी लग रही हूँ, मैं खूबसूरत हूँ ना, यानी अगर 100 नहीं आए, किसी के लिए 100 भी बहुत कम होते हैं, जिनके ज्यादा लाइक्स आ रहे होते हैं, तो लड़की अपने आप को बड़ी मतलब कहती है कि मैं हाँ भाई खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं ना 100 लाइक्स आ गए या 1000 आ गए या कितने भी के में आ गए ना, मैं अच्छी हूँ। अगर नहीं आते तो कहती है, मैं खुद को बुरा भला कहने लग जाती है, मैं तो नाकाम हूँ, मैं बदसूरत हूँ, तो भाई मेरे तो लाइक्स ही नहीं आए। ये है नफ्स परस्ती की वो जंजीर जिसने हया को कैद कर दिया है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे रब ने हमें कैसा बनाया है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि जो है वो लड़कियां, आप हमारे अंदर ये चीज आ जाती है कि जो लोग हमें कैसा जानना चाह रहे हैं, लोग हमारी कैसी इज्जत कर रहे हैं, कैसी वो जो है मोहब्बत हमसे कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेते हैं। बाउंड्रीज हमारी उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। मीम्स और कमेंट हया का कतल। क्या आप जानती हैं कि बाज़ औक़ात एक इनोसेंट सा इमोजी, एक माशाल्लाह का कमेंट, रिप्लाइज टू स्टोरी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक बन सकता है। फिर शैतान धीरे से दरवाजा खोलता है और हया, शर्म, वक़ार बाहर निकल जाते हैं। ये शैतान के चाल जो होते हैं ना, बहुत आहिस्ते से आते हैं, आहिस्ता से। जैसे किसी ने कमेंट कर दिया, माशाल्लाह का कमेंट कर दिया, वो आहिस्ता 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 वो रोज की बात होने लग गई। फिर एक दिन वो स्टोरी पे कमेंट आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल बात हो गई कि रोज 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 कमेंट आता रहा। फिर एक दिन वो इनबॉक्स आ गया, वो माशाल्लाह आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी है, स्टोरीज है, फिर रील्स बहुत अच्छी है, रोज आपने देख ली। फिर आपको एक इंतजार भी रहने लग गया कि आज कमेंट नहीं आया, आज रिप्लाई नहीं आया। ये इंतजार आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जो है वो क्या बन जाएगी, आप आपकी हया, शर्म, वकार सारी निकलने स्टार्ट हो जाएगी। ये दरवाजा धीरे धीरे से खुलता है और फिर क्या होता है कि एक मुकम्मल इंसान को नफ्स के हवाले कर देता है। जब अगर पहले दरवाजे पर आप अपने आप को झुका लेंगे, अपने आप को पहले दरवाजे पे, पहली निगाह, पहली चीज पर अपने आप को रोक लेंगे, तो ये जो है शैतान जो है वो वापस पलट जाएगा। ये नफ्स हमारा जो हमें बहकाता है ये लौट जाएगा। हयादार सोशल मीडिया की पहचान किसे कर सकते हैं? अपने चेहरे को पब्लिक प्रॉपर्टी ना बनाए, हर चीज शेयर करने की आदत तर्क करें। हम इन चीजों को अगर अपने अंदर लेकर आएंगे तो हमारी जो हया सोशल मीडिया पर रह सकती है। रील्स देखने और बनाने में एहतियात करें। अपनी रील्स मतलब देखिए ना, हमने हर चीज जो करनी है अपने आप को जो लोगों के सामने दिखाने से परहेज करना है। फिल्टर से ज्यादा किरदार को बेहतर बनाने पर मेहनत करें। अपनी हकीकती को लाइक्स की भीख ना बनाए।
ये देखें कि सोशल मीडिया पर हमें लगता है ना कि जो सोशल मीडिया पर मशहूर है सिर्फ वही मशहूर है। देखिए ना, उन्हीं की सिर्फ वही अच्छा काम करे, ये सारा कुछ नहीं। हम हज़रत मरियम की देख ले, मिसाल देख ले, वो सोशल मीडिया पर नहीं है लेकिन कुरान में जिंदा है। हालांकि तब उनका कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो वो ये नहीं समझें कि अगर आपके बहुत लाइक्स हैं, अगर आप बहुत फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब आप हक पर हैं और आपकी इज्जत अच्छा रहा। नहीं, आप यहाँ पे मिसाल देखें मरियम की हया इतनी आला थी, अल्लाह ने उनकी पाक दानी का जिक्र सूरह मरियम में किया। और याद करो मरियम को जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, हमने उसमें अपनी रूह फूंकी। तो अंबिया आयत 91 में है। कुरान ने उनकी पाकदामनी, हया और अल्लाह से कुर्बत को बहुत अजमत से जिक्र किया है। क्या आप लोग जानते हैं हज़रत मरियम कौन थी? हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और अल्लाह ने उन्हें बगैर शोहर के मौजूदा तौर पर बेटा अता फरमाया। उनकी जो है शादी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने उनको बगैर शादी के, बगैर शोहर के बेटा अता किया था, हज़रत ईसा। उनके वालिद का नाम, हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान था और वो बनी इसराइल के एक नेक शख्स थे। कुरान में उन्हें मरियम बिन्ते इमरान कहा गया है। कुरान में हज़रत मरियम का एक और जगह जो मकाम आया है, कुरान की वाहिद खतून जिनका नाम बार बार जिक्र हुआ है और एक पूरी सूरत इनके नाम से है, सूरत मरियम। अल्लाह ने फरमाया, वो इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाक व तहहिरकी वस्तफ़ाक अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, पाक किया और तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत दी। सूरह आल इमरान आयत 42 में है। अल्लाह ने उनकी पाकदामनी की खुद गवाही दी है। वो मरियम इब्नती व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और मरियम बिन्त इमरान जिन्होंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। हज़रत मरियम की हया और इबादत। हजरत जो है इनके, मैं थोड़ा सा आपको वाकया बता देती हूँ कि हजरत मरियम जो थी, जो इनकी वालिदा जो थी, उन्होंने ये एक दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह, अगर मेरी यानी काफी देर औलाद नहीं हुई थी तो कह रही अल्लाह मुझे अगर जो भी औलाद देंगे ना तो मैं उसको आपके रास्ते में ना यानी वक्फ कर दूंगी, मैं जो भी औलाद होगी। तो उनको उम्मीद यही थी बेटा ही होगा, लेकिन फिर बेटी हुई तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ये तो बेटी हुई है लेकिन आप बेहतर चाहते हैं कि ये बेटी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दी है ना। तो अल्लाह उन्होंने जो दुआ की थी कि मैं अल्लाह अल्लाह की राह में वक्फ करूंगी, तो उन्होंने उनको वक्फ कर दिया, यानी वो फिर सारा दिन इबादत करती रहती होती थी हजरत मरियम ना। जो फिर उन्होंने क्या किया कि जो है वो मिहराब होता था, मतलब यहाँ पे इबादत की जगह पे होती थी उनकी, वहाँ पे सारा दिन इबादत करती रहती होती थी। और ये अल्लाह ताला को इनकी बात इतनी पसंद थी कि अल्लाह ताला उनको जो है मतलब उनको फल, मौसम के फल जो होते थे ना उनको, और अल्लाह ताला की तरफ से वो भी उनके लिए खाने, यानी खाना उनको भेजा जाता था अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो है फिर इसी तरह एक दिन यहाँ पे जो वाक्य अभी जिक्र हो रहा है कि हजरत मरियम बचपन ही से वालगुजार थी, नेक और गोशा नशीन खतून थी। वो अक्सर मेहराब में रहती थी और अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहती थी। जब फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो घबरा गई और फरमाया, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तू परहेजगार है। कोई फरिश्ता देखे, यानी वो मर्द था ना, तो अब वो इंसानों की शक्ल में आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा फिर आज मुझे मतलब कहा तो मेरे भी यहाँ यानी मतलब एक मर्द आया है, तो उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी। तो वो अल्फाज अल्लाह ताला ने अपने जो है वो कुरान में यहाँ पे शामिल कर दिए, यानी कि अब हर बंदा पढ़ता है। ये उनकी हया है इतनी ज्यादा थी, तो अपनी हया को देखिए, जरूर नहीं है कि वहां पे अब तब उनका नाम इतना मशहूर होगा या नहीं होगा, जब उनका जिक्र इतना नहीं था। लेकिन ये देखें अब यहाँ क्या क़यामत उनका जो जिक्र अब इस किताब में महफूज हो गया। सूरह मरियम की आयत लिखी हुई है। ये जुमला उनकी हयात की गहराई को जाहिर करता है। एक अकेली औरत अचानक एक अजनबी के सामने, और फिर भी अल्लाह को फौरन याद करना, यही है तो उनकी हया।
हया देख रही कि जब भी इंसान कोई उसके सामने ऐसे गुनाह का कोई मौका या कुछ भी आए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगे। तो जैसे सोशल मीडिया पे आपने कोई ऐसे रील कुछ भी देख लिया तो याउज़ु बिल्लाह फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। तीसरा की जब पैदाइश हुई फिर जिब्राइल इस्लाम ने बताया कि नहीं मैं फरिश्ता हूँ और अल्लाह तआला की तरफ से तुम्हें ये मतलब वही करता हूँ कि तुम्हें एक बेटी खुशखबरी दी जा रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया कैसे मतलब ये मुझे कैसे औलाद हो सकती है, मुझे तो वर्जिश हुआ सकती है। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला जिस प्रकार जो चाहे कर सकते हैं। फिर अल्लाह तआला ने क्या फरमाया कि कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन। तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है, यानी ये काम करना तो अल्लाह तआला के लिए बहुत आसान है। तीसरा अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुए, ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मौजज़ा है। हज़रत मरियम नबी नहीं थी मगर खवातीन में सबसे अफजल करार दे दी गई। ये है उनकी मोहब्बत, ये है उनका उनकी हया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमुल मिन रिजाली कसीर वलम यकमुल मिन निसाई इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इम्रातम फिरऔन। उन्होंने मर्दों में बहुत से कामिल गुजरे और औरतों में कामिल सिर्फ मरियम बिन्त इमरान और फिरौन की बेटी बीबी आसिया थी। अब देखिए मरियम बिन्त इमरान और फिरौन की बीबी आसिया के जिक्र। मरियम बिन्त इमरान हमने देख लिया, हजरत मरियम जो हजरत ईसा की वालिदा थी, और फिरौन की बीवी आसिया जो थी ना, इसका भी हमने वाकया पढ़ा है कि क्या थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम का जहाँ पे जिनको इन्होंने पाला था वो फिरौन की बीवी थी ना, मूसा को जिन्होंने पाला था, तो ये मुसलमान हो गई थी, यानी ये अल्लाह पर ईमान ले थी, लेकिन इसके जो शोहर जो था ना वो बहुत जुल्म करता था। इतना जुल्म करता था कि उसको जब पता चला कि ये मुसलमान हो गए, उसने बहुत सारी उसको ईज़ाएं देने की कोशिश की। जो कहा जाता है कि उसको कील ठोके जाते होते थे, उसको मारा जाता था, लेकिन वो अल्लाह तआला के जो है वो इस्लाम पर कायम रही और अपने आप को अपनी जिंदगी को अपनी को उस पर वक्त कर दिया उसने। तो ये देखिए जितनी आजमाइशें सख्त होती है ना, फिर अल्लाह तआला उस बंदे का उतना अदर जो है वो क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं उसका, कि ये बंदा इसने मेरे लिए जो है वो कुर्बानियां दी हैं, तो अल्लाह तआला उसको उसके बदले बेहतरीन नवाजते हैं। कोई भी काम हम ये सोचकर जब करते हैं ना कि मेरी जिंदगी मेरे कोई भी काम तो इसका कोई पता नहीं अजर होगा या नहीं होगा, लेकिन ये याद रखें कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती, लेकिन अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर हमारे लिए स्टोर किया होता है। उसके बदले कोई देखिए ना, जैसे कुछ दुआएं होती हैं, कुछ दुआएं हैं वो फौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं हैं जिसका असर बाद में रहता है और मतलब जिसकी मुसीबत कोई टल जाती है उसकी वजह से, और कुछ है जो स्टोर कर ली जाती है। क़यामत वाले दिन जब हमारी वो दुआएं हमें मिलेंगी ना कि अल्लाह ये तुम्हारी दुआएं जो रख ली गई थी, अब तुम इसके बदले जो मर्जी मांगो, तो फिर क्या होगा, इंसान ख्वाहिश करेगा मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है ना, जब हमारा भी देखिए पिछला वक्त गुजर गया, हमें फील नहीं पता नहीं चल रहा कि हमें नहीं अब लग रहा कि अच्छा पिछला पिछला कैसे गुजरा था, बुरा था अच्छा था जैसा भी था, अब हम शुक्र अदा करते ठीक है भाई गुजर गया। ऐसे ही होता है जब हम जन्नत में जाएंगे, हमें पिछली जिंदगी में ख्वाब एक लगेगा, हम इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके आए हैं, जो भी करके आए हैं वो लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए एक छोटे थोड़े से पल के जो सुकून के लिए जो खुशी के लिए ना अपने हयात का जो सुकून बर्बाद नहीं करें, क्योंकि वहां पे तो अब्दी रहना है ना, तो अभी का जो दो पल की जो खुशी लाइफ में ये सारी चीजों में मिलेगी, उसमें अब्दी फिर जो गुनाह होगा ना उसकी फिर जो तलाफी नहीं कर सकेंगे हम। अभी तो मोहलत है वापिस पलटने की, फिर तो मोहलत भी खत्म हो जाएगी, जो चले गई है अब दुनिया से, हमें उनसे इबरत लेनी है कि वो लोग चले गए, उनके पास मौका खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास अभी मौका है। हम लोग जो क्या करें, हम तो अभी कर सकते हैं ना काम। हम हज़रत मरियम की जिंदगी हमें क्या सिखाती है, इबादत और हया औरत की असल जीनत है। इफ़्फ़त और पाकदामी अल्लाह की तरफ बहुत बुलंद मकाम दिखाता है। अल्लाह से डरना, तन्हाई में भी वक़ार को ना छोड़ना, यही हया है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने से बेहतर है अल्लाह की किताब का जिक्र करना। जिक्र सबसे अफजल जो जिक्र है ना वो अल्लाह का जिक्र है। जो जो लोग दुनिया के स्टेज पर मशहूर होना चाहते हैं वो अक्सर आखिरत के अर्श से दूर हो जाते हैं।
کیونکہ اس کے اندر ایک لالچ آ جاتی ہے نا کہ میں یہ لوگوں کے لیے مشہور ہو رہا ہے، بس لوگوں کے لیے ہم نے کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو آخر کو بھول جاتے ہیں۔ آخر میں دعا پڑھتے ہیں، اللہ سوشل میڈیا ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، نہ کہ حیا کی زوال کا، ہمیں نیتوں میں اخلاص اور نظروں میں پاکیزگی عطا فرما۔ آخر میں تھوڑی سی ریکیپ ہے، اگر سوشل میڈیا پر محفوظ نہیں رہ سکتی تو خاموش رہنا بھی حیا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بے آواز حیات دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ یعنی ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو ہے اس کے مقابلے میں لیکن ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرتی نہیں ہے، اور ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور وہ اتنا نہیں سوشل میڈیا پہ یعنی بات نہیں کرتی، سوشل میڈیا پہ کوئی اس کی جو پوسٹنگ نہیں ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو ہے اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو ہے اس میں حیا نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے وہ خاموش ہے، بلکہ اگر وہ جو سوشل میڈیا پہ محفوظ ویسے اس کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی مطلب ایسی پوسٹ جو ایسی میں نہیں کرتی میں رہ سکتی، تو اس سے بہتر اس کو اچھا ہے نا تو وہ اپنے وہ خاموش رہ لے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کس چیز پر کہہ رہا ہے، کس چیز کو ہمیں جو ہے پروٹائز کر رہا ہے، اس کو ہم نے لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب کل جو 7 ڈے ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حیا اور بہادری ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی حیا جو ہے دیکھیے ہم نے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ حیا کمزوری نہیں ہے، ہم لوگ حیا کے اندر رہ کے ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، عورتیں یہ نہیں ہے کہ ہم عورتیں کمزور ہے، اس نے اگر گھر میں بیٹھی ہے تو اس نے کچھ وہ کام ہی نہیں کر سکتی، بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن صرف ایک پردہ ایک حیا کے دائرے کے اندر ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مقام کو کیسے پہچان رہی ہے نا، وہ دیکھنا ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھنا ہے کہ حیا اور بہادری ساتھ چلتے ہیں، اور پھر ہے حیا کمزوری نہیں، ایمان کی طاقت ہے۔ حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کی کردار کا ہمیں جو مثالیں وہ دیکھ لی ہیں، حضرت مریم کو آج ہم نے واقعہ دیکھ لیا ہے، اور حضرت فاطمہ کی کردار کو بھی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اور کر لیں گے، یعنی اسے اور کون سے پوائنٹ نکل سکتے ہیں، اور پھر ہے آج کی لڑکی کیسے حیا میں باوقار بنے۔ تو یہ جو ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ تو کچھ دیکھیں گے، تو جو ہے کیونکہ یہ دیکھیں بار بار ایک ہی بات جو چل رہی ہے نا، ایک ہی بات ریوائز ہو رہی ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے، حیا حیا حیا، روز یہی بات ہوتی ہے، ہم کیا پردے میں ہم سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں ہم بار بار دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم نے بار بار خود کو ریمائنڈر، کیونکہ دیکھیں نا ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتا ہوتی ہے کہ ہم صحیح غلط کا ہمیں بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نا اگر روز ریمائنڈر ہمیں ملتا رہے نا روز روز روز، تو وہ ایک نہ ایک دن نا ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ ہم نے کرنا ہے، اگر کوئی برا کام کرنے لگ جائیں گے نا تو ہم لوگ رک جائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا ہمیں جسٹ ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ریمائنڈر ہمیں مل جائے اور ہم کیا کریں اپنے آپ کو اس پر لے آئے، بس اتنا سا خود کو جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے کہ ایک اپنے آپ کو روز یاد کروانا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیسے لکھتی ہوں آپ کا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك